السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے اجتماع میں اور اس سے پہلے والے دو اجتماع میں لگاتار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی افضلیت کو ہم نے سنا۔ انشاءاللہ آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں کچھ خراج پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ سیدہ پاک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی، حضور کی چار بیٹیاں ہیں، ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت زینب، ایک حضرت ام کلثوم اور ایک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان چار بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضور محبت فرماتے تھے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور جب سیدہ خاتون جنت کی ولادت ہوئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کیوں رکھا؟ خود سرکار فرماتے ہیں کہ انما سمیت ابنتی فاطمہ، کہ میں نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ کیوں رکھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ اور میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والے دونوں جہنم سے آزاد ہیں، دونوں جہنم سے آزاد ہیں۔ اس لیے حضور نے اپنی بیٹی کا نام ہی فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کا معنی ہی جہنم سے آزاد ہو جانا۔ اور سیدہ خاتون جنت تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے صدقے ان سے محبت کرنے والے جہنم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک فاطمہ جو ہے یہ پاک خاتون ہے، پاک خاتون ہے۔ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد جہنم پر حرام ہے۔ یہ شان اور عظمت ہے اپنی حضور کی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی، پاک رسول کی پاک بیٹی اور عظیم رسول کی عظیم بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اتنی محبت کرتے اپنی بیٹی سے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پہلی بیوی ہیں، اور یہ حضرت فاطمہ زہرا کی امی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، وہ خود فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ چھوٹی تھی تو حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور جب دروازے پر آتے باہر سے، آنے کے بعد دروازہ بند رہتا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے حضور بلند آواز سے السلام علیکم کہتے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں آواز سنتی تو میں حضور
उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा करके जवाब देती, और जवाब देती तो फिर भी हुजूर अंदर तशरीफ नहीं लाते थे। तो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती हैं कि मैं मुस्कुरा करके अपनी बेटी फातिमा से कहती कि ए फातिमा, देखो दरवाजे पर कौन आए हैं, तुम्हारे बाबा आए हैं जो तुम्हें सलाम कर रहे हैं। तो हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं कि हजरत फातिमा जहरा मुस्कुराते हुए जाती दरवाजे के पास, दरवाजा खोलती और हुजूर की उंगली पकड़ करके हुजूर को अंदर लेकर के आती। और हुजूर इसलिए खड़े होते थे दरवाजे पर कि ताकि मेरी बेटी आए और मेरी उंगली पकड़ करके अंदर लेकर के जाए। और फिर उसके बाद अपने अंदर जाकर के हुजूर अपनी गोद में सैयदा फातिमा को बिठाते हैं और बिठा करके कान में कुछ राज की बातें करते हैं, बाप बेटी से, बेटी बाप से, कान में कुछ राज की बातें। और सैयदा फातिमा चूंकि छोटी थी, छोटी छोटी जबान से सवाल करते करते आपने एक सवाल कर दिया कि बाबा मैं अपने रब को कब देखूंगी, अपने रब को कब देखूंगी। बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था। और हुजूर ने कितना बेहतरीन जवाब दिया। हुजूर फरमाते मुस्कुरा करके, आए मेरी बेटी फातिमा, बहुत जल्द देखोगी। कब? जब जन्नत में सब जन्नती चले जाएंगे और तुम भी जन्नती औरतों की सरदार बनकर जाओगी, तो सारे जन्नतियों को अल्लाह अपना दीदार कराएगा और तुम्हें भी अपना दीदार कराएगा। तो इस तरीके से हुजूर ने अपनी छोटी बेटी की वो नन्हे से सवाल का जवाब हुजूर ने किस प्यारे अंदाज में दिया और हकीकत ही बता दिया कि बहुत जल्द तुम दीदार कर लोगी, कि जन्नत में जाकर के अपना रब का दीदार, अपने रब को तुम देख लो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि आखिरी उम्र तक, हुजूर की आखिरी उम्र तक हुजूर अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करते और बहुत सारी राज की बातें। एक मरतबा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, जो हुजूर की सबसे प्यारी बीवी है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने देखा कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर तशरीफ लाए बाहर से, तो सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के पास बैठी हुई थी, बाजू में, पहलू में, और बैठ करके कान में कुछ बातें चल रही थी। मैं कुछ काम कर रही थी, मैंने देखा कि हुजूर सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी के कान में कुछ कहा तो सैयदा फातिमा रो पड़ती, और फिर थोड़ी देर के बाद हुजूर ने कुछ कान में कहा तो मुस्कुराने लगती हैं। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं हैरान हुई कि थोड़ी देर पहले रो पड़ी और उसके बाद मुस्कुरा पड़ी। और ये कब था? हुजूर के विसाल से चंद दिन पहले की बात। जब हुजूर का विसाल हो गया, विसाल होने के बाद हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि ऐ फातिमा, आखिर वो क्या बात थी जो आपने, आपके कान में आपके बाबा यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कान में राज की बात कर रहे थे कि पहली बार करने के बाद आप रो पड़ी और दूसरी बार आप जो है मुस्कुराती। तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, पहली मर्तबा हुजूर ने मेरे कान में ये फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, चंद दिनों के बाद मैं अपने रब की बारगाह में जाने वाला हूँ। जब ये मैंने सुना अपने बाबा से तो मुझे रहा नहीं गया, मैं रो पड़ी। और फिर उसके बाद हुजूर जो है मेरे कान में ये फरमाते हैं कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे जाने के बाद सबसे पहले तुम ही होगी जो मुझसे मुलाकात करने के लिए आओगी। यानी तुम, मेरे इंतकाल के बाद सबसे पहले बहुत जल्द तुम्हारा भी इंतकाल होगा, तुम मेरी बारगाह में आ जाओगी। जब मैंने ये सुना, सुनने के बाद मैं मुस्कुरा पड़ी। और साथ ही हुजूर ने ये भी फरमाया कि क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार हो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम हुजूर ने इतना बुलंद किया कि सैयदा पाक को हुजूर ने तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया। जन्नत में जब सारी औरतें जाएंगी तो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा होंगी। और सिर्फ हुजूर की उम्मत के नहीं बल्कि तमाम आलम के जितनी औरतें हैं, हजरत सैयदा मरियम, हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी हैं, और हजरत आसिया है, ये सब जो है इन सब से अफजल सैयदा फातिमा ज़हरा है। और
इन सब की सरदार होगी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बल्कि तमाम आलम के औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपके चेहरे के ताल्लुक से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद फरमाती हैं कि हुजूर का जो चेहरा था, हुजूर का चेहरे मुबारक, हुजूर के चेहरे से ज्यादा अगर किसी का चेहरा मिलता जुलता था तो फातिमा ज़हरा का। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह, एकदम बिल्कुल हुजूर ही की तरह आपका चेहरा नजर आता था, इतना खूबसूरत और हसीन। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी अजीम खातून है कि जब आपका निकाह हुआ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, तो निकाह के बाद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जब आप बीवी बनी तो आप सुबह से शाम तक कामों में मशगूल रहती थी। कैसे काम कि आप जो है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतने काम करती, लगातार इतने काम करती कि आप अपनी चक्की अपने हाथों से चक्की में आटा पीसती, जौ का आटा पीस करके उससे रोटियां बनाती थी। आज जितने भी औरतें हैं आप देखें, कोई चक्की में आटा नहीं पीसते, बस बल्कि वो मिक्सर है, बहुत सारी चीजें जिसमें पीस करके बहुत जल्द खत्म कर देते हैं। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा रोजाना चक्की में आटा पीसती थी। और आज की जितनी बच्चियां हैं, किसी के हाथ घर के काम करके किसी के हाथ में छाले नहीं आते, लेकिन ये एक बेटी हुजूर की ऐसी बेटी है कि जो इतना काम करती थी कि आपके हाथ में छाले आ जाते थे। और इतना काम कि चक्की पीसती। फिर उसके बाद हजरत मौला अली के वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद, जो हजरत फातिमा ज़हरा की सास है, उनकी खिदमत करती। और इतनी खिदमत, चूंकि उनकी उम्र बहुत लंबी हो चुकी थी, इतनी खिदमत करती कि फातिमा बिनते असद खुद फरमाती हैं कि अय बेटी फातिमा, तुम मेरी ही खिदमत कितना करोगी, अपने बच्चों की भी तो, तुम्हारे बच्चे भी तो हैं, उनका भी ख्याल कर लिया करो। तो सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं कि आप सिर्फ क्या मौला अली के ही वालिदा हैं, आप मेरी वालिदा नहीं हैं। यानी सास की भी इतनी खिदमत सैयदा फातिमा ज़हरा करती थी। और फिर बच्चों को देखना, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन से 11 महीने के बड़े थे। छोटे बच्चों को देखती भी, उनकी परवरिश भी करती, और फिर साथ ही साथ जो है हजरत मौला अली से कहती कि आप चरखा लेकर के आए, ताकि उस चरखा से मैं जो है सूत निकालो, तागे निकालो और तागे निकाल करके दूं और आप उसको बेच करके आए। इतना काम करती। और काम करने के बाद जब रात होती, तो रात होने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाकर कहती, क्या है मेरे सरताज, अगर आप हुक्म दें तो क्या मैं आज की रात अपने रब को राजी ना कर लूं। तो सैयद मौलाए कायनात फरमाते कि अरे फातिमा जाओ, तुम्हें इजाजत है, तुम अपने रब का आला को तुम मना दो। तो सैयदा पाक जो है पूरी रात, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कहती कि पूरी रात पूरा दिन काम करती, और पूरी रात आप जो है मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की इबादत और रियाजत करती, और सजदे में सर रख करके आप ये दुआ करती थी कि मौला मेरे आका मेरे बाबा की उम्मत पर रहम फरमा, मेरे बाबा की उम्मत पर रहम फरमा। सैयदा पाक जो है बहुत हुजूर जिस तरीके से हमारी फिक्र करते थे, अपनी उम्मत की फिक्र, ऐसे ही हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी अपने बाबा यानी मुस्तफ़ा करीम की उम्मत की फिक्र बहुत ज्यादा करती थी, बहुत ज्यादा। आप जन्नती औरतों की सरदार थी, लेकिन फिर भी जो है आपकी दुआ का आलम यह है कि अगर आप दुआ करें तो अल्लाह ताला जन्नत से खाना भेज देता है। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा छोटे छोटे थे, और ईद का दिन था, कपड़े खरीदने के लिए बज़ाहिर घर में कुछ नहीं था। तो इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा छोटे छोटे थे, अपनी अम्मी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए, और आने के बाद कहा कि अम्मी, सारे बच्चे जो है ईद के लिए नए नए कपड़े पहने हैं, हमारे लिए भी कपड़ों का इंतजाम कर दें। तो खातून जन्नत के पास बज़ाहिर उस वक्त कुछ था नहीं, तो आप जो है कहती हैं बेटा फिक्र मत करो, अल्लाह ताला इंतजाम कर देगा। ये कह करके आप जो है मुसल्ला बिछा देती है, और मुसल्ला बिछा करके आप रब की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करती है, मौला तेरे महबूब के दो नवासे, तेरे महबूब के दो बेटे इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उन्होंने कपड़ों का मुतालबा किया है, या अल्लाह मैंने उन्हें
इत्मीनान दिया कि अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देगा। मौला मेरा काम था तेरे महबूब के उन दो शहजादों को जो है ये बोलना कि बेटा इंतज़ाम हो जाएगा, मौला इंतज़ाम करने वाला तू है, बस तू मेरी लाज रख ले। और उसके बाद जो है दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, तो सैयदा पाक जब बाहर आकर देखती हैं तो दरवाजे पर कोई कपड़े रखे हुए थे। तो सैयदा पाक कपड़े उठाती है और इमाम हसन और हुसैन को पहनाती हैं। उतने में हुजूर तशरीफ लाए। जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, सैयदा पाक खड़ी हो जाती है और मुस्कुरा करके अपने बाबा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को चूमती हैं और चूम करके हुजूर मुस्कुराते हैं। हुजूर की मुस्कुराहट को देखकर सैयदा पाक कहती हैं कि बाबा आप क्यों मुस्कुराते हैं? तो कहा कि बेटी जानती हो ये जो कपड़े तुमने अपने दोनों शहजादों को जो पहना रखा है, ये कपड़े कहाँ के हैं? कहा नहीं जानती। तो हुजूर फरमाते हैं कि ये कपड़े जन्नती कपड़े हैं जो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए से तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया। यानी सैयदा खातून जन्नत का इतना बड़ा मकाम है कि अगर आप दुआ कर दे तो अल्लाह ताला जन्नत से इमाम हसन और हुसैन के लिए कपड़ा भेजते। इतनी बड़ी अजीम और रसूलुल्लाह की वो अजीम बेटी, वो पाक बेटी कि जिनकी दुआओं का ये असर है और हमेशा अपने हमारे हुजूर की उम्मत की फिक्र करती थी। एक मरतबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की दावत दी। बहुत सारे सहाबा के साथ हुजूर की दावत दी कि हुजूर तशरीफ लाए, हमारे यहाँ दावत है। हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ताला ने बहुत सारा माल दिया था और आप अल्लाह की राह में खूब खर्च करते थे। हुजूर के कदमों पर खूब माल खर्च करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब दावत दिए तो हजरत मौला अली भी उस दावत में शरीक थे। तो जब हुजूर चलते थे तो हजरत उस्मान गनी पीछे हुजूर के पीछे चलते थे। हजरत उस्मान गनी हुजूर के कदमों को गिनते थे। हुजूर एक कदम रखते तो गिन लेते, दूसरे कदम को गिनते, कदमों को गिनते थे। और कदम को गिनने के बाद जब घर तक पहुंचे, जितने कदम हुजूर रखे उतने सारे गुलामों को हजरत उस्मान गनी ने आजाद किया। उस वक्त गुलामों का दौर था, गुलामों को आजाद कर दिया। और जब मौला अली ने सारा मंजर देखा तो आप दावत के बाद अपने घर गए। खातून जन्नत सैयदा फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। तो मौलाए कायनात ने हजरत मौला अली ने जो है एक चेहरा कुछ उदास था, तो हजरत फातिमा जहरा ने पूछा क्या है मेरे सरदार, आखिर आपका चेहरा उदास क्यों है? तो मौला अली ने फरमाया कि ए फातिमा तुम जानती हो कि हजरत उस्मान गनी ने हुजूर की दावत की है और साथ ही साथ जो है हुजूर के कदमों को गिनकर उन्होंने हुजूर अल्लाह और उसके रसूल के रजा के लिए गुलामों को आज़ाद किया है। बस मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं भी हुजूर की ऐसी दावत करता। तो हजरत सैयदा खातून जन्नत कहती हैं कि आप परेशान क्यों होते हैं, आप जाइए हुजूर को दावत देकर के आइए। सिर्फ हुजूर को नहीं, हुजूर के सहाबा को भी दावत देकर के आइए। तो हजरत मौला अली समझ गए कि ये कोई मामूली खातून नहीं, नबी की बेटी है और ये ऐसे ही नहीं कह रही। तो गए, जाकर के हुजूर की दावत दे दिए। सहाबे कराम भी थे। हुजूर से फरमाया या रसूलल्लाह मेरे घर में दावत है, आप तशरीफ लाएं अपने सहाबा को लेकर। तो हुजूर जो है अपने सहाबे कराम को लेकर के सैयदा मौलाए कायनात अपने घर आए और आने के बाद हुजूर भी जो है दावत के लिए तशरीफ लाए। और हजरत मौला अली ने सैयदा फातिमा जहरा से पूछा कि ए फातिमा, मैंने हुजूर को दावत दे दी है और साथ ही साथ जो है मैंने सहाबे कराम को भी दावत दे दी है, अब दावत का इंतजाम कैसे होगा, घर में तो कुछ है नहीं। तो हजरत सैयदा पाक कहती हैं आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला इंतजाम कर देगा। तो हजरत फातिमा जहरा अंदर गई और अंदर जाने के बाद चूल्हे पर एक बर्तन रखा, एक हांडी रखा और हांडी में कुछ आपने डाल करके उसके बंद किया और वहीं पर थोड़ी ही दूर में आप मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में सर रख करके सजदे में सर रख कर दुआ करती, मौला तेरे महबूब को दावत देना मेरा काम है और महबूब के लिए दावत का इंतजाम करना मौला तेरा काम है। तो ये कहकर के आपने दुआ की और दुआ करने के बाद फिर उठी, बिस्मिल्लाह पढ़कर के आप जो है बर्तन में उस हांडी में आप जो है कुछ घुमाती हैं, ऐसे एक चम्मच से घुमाती हैं तो अल्लाह ताला गैब से जो है रिस्क का इंतजाम कर देता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम दावत में बैठे हैं, सैयदा पाक लाती जा रही हैं, मौलाए कायनात जो है दावत में पेश करते जा रहे, दस्तरखान पर रखते जा रहे, खाना खत्म ही नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलाम खाना तनावुल फरमाने के बाद मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबियों, जानते हो ये कैसा खाना है? कहा या रसूलल्लाह आप ही बेहतर जानते हैं, आप ही बता दें। तो सरकार फरमाते हैं ये जन्नती खाना है जो अल्लाह ताला ने फातिमा की दुआ पर अल्लाह ताला जन्नत से खाना भेजा। तो सैयदा खातून जन्नत दुआ कर दे तो अल्लाह जन्नत से खाना भेज दे। अब मौला अली जो है
हजरत फातिमा जहरा के पास गए और जाने के बाद कहा कि अय फातिमा, खाने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने गुलाम भी आज़ाद किए हैं, हमारे पास कोई गुलाम नहीं, तो हम क्या करें? तो सैयदा पाक कहती हैं कि आप उसकी भी फिक्र ना करें, उसका भी मैं इंतजाम कर दूंगी। फिर उसके बाद मुसल्ले पर बैठ करके सैयदा फातिमा जरा हाथ उठाती हैं और अर्ज करती, मौला मेरे पास गुलाम तो नहीं है, लेकिन मौला तू मेरे मेरे बाबा की उम्मत की तो मगफिरत फरमा। या अल्लाह मेरे बाबा की, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मगफिरत फरमा। ये दुआ हजरत फातिमा जहरा अपनी हुजूर की उम्मत के लिए करते हैं। आप गौर करें कि उम्मत में हम सब आ गए, हम भी हैं, आप भी हैं, सब कुछ क़यामत तक आने वाले। हमारी अगर किसी ने फिक्र की है, रसूलुल्लाह ने फिक्र की और रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा जहरा ने फिक्र की। इसलिए खातून जन्नत से खूब मोहब्बत करें, अकीदत करें, सहाबे कराम से भी मोहब्बत होनी चाहिए और हुजूर के घर वालों से भी मोहब्बत होनी चाहिए, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत होनी चाहिए, सहाबे कराम से भी सच्ची मोहब्बत और अकीदत करनी चाहिए। सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि जब भी हुजूर जो है, हुजूर के घर में जब सैयदा खातून जन्नत आती तो हुजूर अगर बैठे होते तो आप हुजूर खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के अपनी बेटी के हाथों को चूमते और हुजूर अपनी जगह अपनी बेटी को बिठा देते। अब गौर कीजिए, हम सब जो है रसूलुल्लाह के लिए सलातो सलाम पढ़ने के लिए खड़े होते हैं ताज़ीम के लिए, लेकिन हुजूर ने अगर किसी की ताज़ीम के लिए खड़े हैं तो वो अपनी बेटी सैयदा फातिमा जहरा। इतना बड़ा मकाम है खातून जन्नत का, और उम्मत की भी आप इतनी ही फिक्र करती थी जैसा हुजूर फिक्र करते थे, उम्मत की सैयदा खातून जन्नत भी फिक्र करती थी। और फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के भी सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह अन्हा के यहाँ जब हुजूर तशरीफ लाते तो सैयदा फातिमा जरा खड़ी हो जाती और खड़ी होकर के हुजूर के हाथों को चूमती और हाथों को चूम करके अपनी जगह हजरत फातिमा जहरा बिठा देती। अब देखिए, हाथ चूमना ये सैयदा फातिमा जहरा की भी सुन्नत है, और बुजुर्गों के हाथ चूमना, बाप के हाथ चूमना, बुजुर्गों के हाथ चूमना, ये कोई शिर्क या बिदत नहीं है, बल्कि ये हजरत सैयदा पाक की भी सुन्नत है और ये हुजूर की भी सुन्नत है। हुजूर ने भी अपनी बेटी के हाथ चूमे, तो ये छोटों पर शफकत के लिए उनके हाथों को चूमना ये हुजूर की सुन्नत है, और बुजुर्गों की ताजीम के लिए हाथों को चूमना ये सैयदा पाक की सुन्नत है। और सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला इतनी पाक खातून थी, आपके बालों को, सर के बालों को चांद और सूरज तक नहीं देखे, इतना आप पर्दा करती थी, इतना पर्दा, आप इतने पर्दे में रहती थी हमेशा कि आपके बालों को चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। इसलिए आला हजरत ने फरमाया कि जिसके आंचल को ना देखा महो बहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जहरा के बालों को जो है चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। और सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से इमाम हसन और हुसैन खुद फरमाते हैं कि हमने अपनी माँ के बालों को तक हमने कभी नहीं देखा। सैयदा पाक जो है अपने बेटों से भी अपने बालों को अपने बेटों के सामने भी जो है सैयदा पाक अपने सर पर ओढ़ी रहती थी, कभी भी बालों को वो खोल करके नहीं रखती थी, अपने बेटों के सामने भी। आप गौर करें कितनी बापर्दा हजरत सैयदा। आज अगर हमारे कौम की जो बच्चियां हैं, वो बच्चियां अगर हजरत फातिमा जहरा की सीरत को पढ़ लें और फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की अजीम शख्सियत को पढ़ लें, तो कोई भी जो है बेपर्दा नहीं होगी, कोई जो है किसी के हाथ में हाथ देकर नहीं भागेगी, कोई इस्लाम को नहीं छोड़ेगी। हर बच्ची जो है इस्लाम की पाबंद बनेगी, हर बच्ची इस्लाम की तालीमात पर अमल करेगी। जरूरत क्या है? जरूरत इस बात की है कि अपने घरों के अंदर आप ये माहौल बनाएं कि हर रात अगर बच्चियां हैं तो वो बच्चियों को खातून हजरत फातिमा जहरा की वाकयात सुना करके सुनाएं, और अगर मर्द बच्चे हैं तो मर्द बच्चों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात सुना करके सुनाएं। और आप तो बच्चे हैं कि आप कोशिश करें कि अपने माँ बाप से सुने, या आप मदरसा आते हैं तो मदरसे में सुने, या आपके पास मोबाइल है तो कोई अहले सुन्नत वल जमात के जो आलिम दीन है, उन आलिम दीन से आप हुजूर की सीरत और वाकयात, अगर आपको पढ़ना आता है तो आप किताब लें, किताब लेकर के जो है आप उस किताब में हुजूर की सीरत पढ़ें और हजरत फातिमा जहरा की सीरत पढ़ें, सहाबे कराम की सीरत पढ़ें। और सीरत पढ़ करके रोजाना आप एक एक वाकया कम से कम 5 मिनट अगर आप हुजूर की सीरत पढ़ करके सोएंगे, सीरत की किताब तो आप तक पहुंचा दी गई है,
उस किताब को आप रोजाना रात में 5-5 मिनट अगर पढ़ करके सोएंगे तो आपका सोना भी इबादत होगा, और आप सोएंगे तो आपके जहन में वो सीरत रहेगी, और आप उठेंगे तो आपके अंदर अल्लाह ताला वो सारी सीरत की झलकियां पैदा करें। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हर रात सोने से पहले, नमाज इशा के बाद सोने से पहले जो सीरत की किताब आपके पास है, 5 मिनट, बस 5 मिनट, आधा आधा पेज आप पढ़ लें, पढ़ करके आप सोया करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी बहुत सारी बरकतें आपको अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के दिलों में हजरत सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह अन्हा की सच्ची अकीदत मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमाए, और अल्लाह सैयदा पाक के सदक़े तुफ़ैल में हमारी कौम की तमाम औरतों को, बच्चियों को सैयदा पाक की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हर किस्म की गुमराहियों से, हर किस्म की बदअमली से बच करके सैयदा पाक की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मौला खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सदक़े तुफ़ैल मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। खातून जन्नत ने जो अपने बाबा की उम्मत की फिक्र के लिए में जो दुआ की है मौला, उन दुआओं में हम सबको भी हिस्सा नसीब फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल खातून जन्नत रज़ी अल्लाह अन्हा के सदक़े में मौला हमें, हमारे वालिदैन को और तमाम ईमान वालों को या अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहां की सारी कामयाबियों से मालामाल फरमा। या अल्लाह हम सब जितने यहाँ पर हाजिर हैं, हमारे वालिदैन को या अल्लाह मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती, ईमान और आफियत के साथ सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह अन्हा के तवस्सुल से और उनके सदक़े में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे वालिदैन के सायों को मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती, ईमान और आफियत के साथ हम सब पर लंबे अरसे तक कादिर कायम व दाइम अता फरमा। हमारे घर वालों के सायों को लंबे अरसे तक ईमान व आफियत के साथ कादिर कायम व दाइम अता फरमा। या अल्लाह हम सब के तमाम नेक दुआओं को, नेक मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली, शिफाए ताम्मा नसीब फरमा। या अल्लाह जनाब अनवर पाशा साहब जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, मौला सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा के सदक़े में मौला उनको मुकम्मल शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा नसीब फरमा, उनके साये को उनके घर वालों पर लंबे अरसे तक ईमान और अकीदे के साथ, सलामती के साथ, सेहत व आफियत के साथ कादिर कायम व दाइम अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।